गुड मॉर्निंग डीवीपी स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। लास्ट क्लास वी read in unit 3rd and 7th chapter. 7th chapter also complete in last class. Today I start again next chapter short run equilibrium output in 3rd unit. Short run equilibrium point in the economy. Okay, chapter number 8. Chapter number 18 has the short run equilibrium point. We also read in last chapters some basic concept of aggregate demand, aggregate supply, consumption functions, saving functions, components of aggregate demand, and some numerical questions we saw last class. Today start again short run equilibrium point. The output short run equilibrium depend in the economy equilibrium point AD and AS. And second concept, long run equilibrium point. Long run equilibrium point in the economy always time AD equals to AS. It is a constant position in the economy. So that इसलिए long run equilibrium आपके सिलेबस में नहीं है कि long run economy में equilibrium point में always economy equals to aggregate demand equals to aggregate supply. Okay. And first concept short run equilibrium output in your syllabus AD and AS in first equilibrium point in the economy aggregate supply equals to aggregate demand. Aggregate supply equals to aggregate demand. And short run equilibrium second point EQ point I equals to S concept. I equals to S concept. I for investment and S for savings. When on this point in the economy all investment are equals to all savings, then we call short run equilibrium point. Okay. And second aggregate demand and aggregate supply in the economy in which time aggregate demands are equals to on this point aggregate supply, then we call short run equilibrium output. Okay. Some concept you are also now we read in last class AD equals to C plus I and AS equals to C plus S. And you also know AS always equal to in the economy Y. Aggregate supply is always equals to income during in the accounting year. Total income are equals to aggregate supply in the economics. Okay. Second, aggregate demand equals to C plus I. All consumption in the economy and all savings are equals to a constant point in the economy are equals to aggregate demand. And all consumptions in the economy, all consumption and all savings are equals to aggregate supply. Okay, that's clear. एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको नहीं रीड करना है, नहीं पढ़ना है. ओके. सेकंड फर्स्ट टाइप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये आपको इसके टू कॉन्सेप्ट्स हैं, टू अप्रोच हैं, आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं. इनको आप आज अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू डायग्राम. फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 concept of short run. In macroeconomics, short run is defined as a period of time during which technology play no role in the determination of output in the economy. During which technology no role in the determination of output. That means short run equilibrium में
टेक्नोलॉजी होता है उसका कोई रोल नहीं होता है, इस पे डिपेंड नहीं होती, टेक्नोलॉजी पे आउटपुट का कोई रिलेशन नहीं होता है। वी आल्सो रीड इन 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द मार्केट पोजीशन in the market, short run equilibrium, long run equilibrium. You also know short run equilibrium in the output sector, industry sector. Some factors are constant and one factor are only variable. In short run equilibrium, that is position same here depend. Technology play no role in the determination of output. यानी that means technology का output से कोई relation नहीं होता है. Technology is constant. इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन में आपकी ये मान के चलते हैं, जम्पशंस ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री ऑफ एम की वो क्या कांस्टेंट मान लेते हैं। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी तो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट से कोरिलेशन होगी, जितना मैक्सिमम अपना आउटपुट करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री में उतना पॉसिबल होता है कि मिनिमम कितना भी कर सकते हैं और मैक्सिमम जो आउटपुट होता है उसके क्राइटेरिया होता है। ओके, किसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, बट लॉन्ग टाइम में आप क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आपकी वेरिएबल होती है, आउटपुट आपका वेरिएबल होता है, सारे फैक्टर्स हैं वो आपकी वेरिएबल्स होते हैं, तो उनका उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, आप आपके जो मार्केट में सेल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हो, बट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट में आपके सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। ओके, इट इज एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, सेम वही कंडीशन यहाँ पे क्रिएट है कि अदर जो अपने फैक्टर्स होते हैं वो रिमेन्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ओनली एक सिंगल फैक्टर को आप क्या मान सकते हो, इसमें शॉर्ट रन में वेरिएबल मानते हो और बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं सारे आपके सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, सेम वही पोजीशन यहाँ पे रिपीट हो रही है कि नो रोल या रिमेन कांस्टेंट, यानी आपने इसको अपने कांस्टेंट मान लिया। आपने सपोज कीजिएगा कि आपने इंडस्ट्री में एक मशीन स्टेबलिट की है, ओके, और आपका शॉर्ट रन जो पीरियड है वो 3-4 मंथ्स है, 3-4 मंथ्स के लिए आपको प्रोडक्शन करना है। आपने समर और विंटर वेकेशन एग्जांपल लिया था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब मार्केट की स्टडी की थी, तो सेम वही एग्जांपल यहाँ पे दो रिपीट कर सकते हैं अपन। ओके, देयर इज 1-to-1 relationship between output and employment, okay, thus if employment is doubled output will also double, यानी आप employment को increase करोगे, employment is increased then effect on output will be automatically increase। okay, in other words the level of employment in the economy measured the level of output GDP, आउटपुट जीडीपी, यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, आउटपुट को किससे ऐड किया, यहाँ पे जीडीपी से ऐड किया है, क्योंकि जीडीपी का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है। ओके, जैसे अपना आपने फर्स्ट जो यूनिट आपकी नेशनल इनकम में आपने क्या रीड किया था, क्या लर्न किया था, जीडीपी, तो वहाँ पे वही रिपीट वर्ड हो रहा है यहाँ पे जीडीपी, और जीडीपी के जब एडी और एस की स्टडी करते हैं तो उसको वहाँ पे किसे डिनोट किया है, इसने आउटपुट से डिनोट किया है। इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी आप सिंपल एग्जांपल है, यदि आप आउटपुट इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट है उसको भी इंक्रीज करना होगा। ओके, बट टेक्नोलॉजी है रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? सेकंड, equilibrium output refers to that level of output in the economy where यानी इकोनॉमी में आउटपुट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो किस पॉइंट से आप गेट कर सकते हो, किस पोजीशंस में आप उसको गेट कर सकते हो। द इक्विलिब्रियम जीडीपी implies as situation when AS equals to AD, यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट है इकोनॉमी में आपको कहाँ मिलेगा, कौन से पॉइंट पे मिलेगा, जहां पे आप एडी और एएस को इक्वल मानते हो। ओके, और y इक्वल्स टू एएस, y मीन्स यू आल्सो नो y मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, तो आप कैसे इसको डिनोट कर सकते हो, आप इसको फर्स्ट कैसे डिनोट करोगे आप, एएस इक्वल्स टू एडी। ओके, यदि आप एएस यहाँ पे डिनोट नहीं करते हो तो किस में रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप y में रिप्लेस कर सकते हो, y इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। In such a state, actual stock of the required of desired stock of the producer AD equals to AS
AD इक्वल्स टू AS। यानी आप थोड़ा सा आपको बैक जाना होगा इसके लिए। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ओके, ये डिमांड कर्व था और ये सप्लाई कर्व था। जहाँ पे इक्वल इक्वल होते हैं वहां पे कौन सी पोजीशन थी, ये पोजीशन आपने रेडी की थी। से वही यहाँ पे ओनली क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ए डी प्लस ए एस कर्व इज ऑलवेज स्टार्ट टू 0 पॉइंट एंड एडी कर्व स्टार्ट टू अपवर्ड टू 0। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कौन सा पॉइंट हो गया, एडी इक्वल्स टू एस। क्लियर। तो आपको इसमें समझना है इसको डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे वहां पे आपकी जो डिमांड्स हैं और आपकी सप्लाई से दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंप्लीट। नेक्स्ट, इन केस एएस ग्रेटर देन एडी, यानी एएस ग्रेटर देन एडी, यदि मैं आपको ये कहूं सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, तो क्या पोजीशन होगी, इकोनॉमी में सप्लाई एक्सेस सप्लाई है और डिमांड्स क्या है, कम है। तो सेम टू सेम यही पोजीशन यहाँ पे क्रिएट होगी, एडी लेस देन एएस, यानी ग्रेड सप्लाई है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इस पॉइंट से यदि ऊपर जाएंगे, ये कौन सा पॉइंट है, एएस कर्व है और ये एडी कर्व है, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी, और इससे नीचे आएंगे तो डिमांड क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ओके, तो ये पोजीशन आपके यहाँ पे दी हुई है, यानी कि इकोनॉमी में ऐसी पोजीशन क्रिएट हो सकती है इन केस एएस ग्रेटर देन एएस, और सेकंड पोजीशन है इन केस एएस लेस देन एएस, एएस लेस देन एएस। ये आपकी बुक्स में इसका डिटेल्स में दिया हुआ है, आप इसको ठीक से इसको लर्न कर लेना इसको। ओके, नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। We have to approach to study the determination of equilibrium output GDP or equilibrium income. First approach AS equals to AD approach या Y equals to AD approach. First approach, and second approach AS equals to I, saving equals to investment. Second approach, यानी आपके सिलेबस में दो अप्रोच हैं, इन दोनों अप्रोच की हेल्प से आप इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको फाइंड कर सकते हो। ये जो टॉपिक है मोस्टली 7 चैप्टर पे डिपेंड करता है। इस 7 चैप्टर में आपको कंजप्शन फंक्शन की शेप कैसे होती है, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की शेप क्या होती है, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व की शेप कैसे होती है, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ओके, इन्वेस्टमेंट कर्व है। इन सब की पोजीशन से यदि आपको नॉलेज है इनका, तो आप नॉर्मली इस चैप्टर को ठीक से पढ़ सकते हो। और मोस्टली चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता रहता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ से, 6 मार्क्स है। तो इसके डायग्राम से टेबल से इसको आप ठीक से समझ रहे हैं इनको। नेक्स्ट, फर्स्ट अप्रोच एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच। ओके, इसको अपन शेड्यूल से और डायग्राम से इसको समझते हैं। वो फर्स्ट कॉलम लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू वाई फॉर इनकम, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग फंक्शन। फर्स्ट है वाई फॉर इनकम, वाई फॉर इनकम, इनकम की वैल्यू ऑफ इनकम, इनकम 0, 50, 100, 50, 100, 200, 300, 400, and consumption function value of 50, 75, 100, 150, 200, 250. Investment is constant in the economy, same level of output, 100, 100, 100, 100, 100. Okay. Second, saving function. Saving function अपन वो इस टेबल इस जो अपन डायग्राम बनाएंगे इसमें सेवन फंक्शन की नीड्स नहीं है अपन को, तो इसको अपन फाइंड करें या नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि अपन को कौन सी वैल्यू चाहिए, अपन को एडी वैल्यू चाहिए और कौन सी वैल्यू चाहिए, एएस वैल्यू चाहिए। y इक्वल्स टू ऑलवेज एएस कर्व। क्लियर। ड्रॉ अ डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। y 0 इनकम लेवल एंड एडी एंड एएस कर्व, AD and AS curve. Okay, income level 0, 100, 200, 300, 400, 500. Okay, and y axon AD and AS curve. You also know in the economy 0 point start to a curve is
एग्रीगेट सप्लाई करो ऑब्लिक इनकम। इकोनॉमी में जब डायग्राम में अपन ड्रॉ करते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो 0 पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, और वो जो लाइन होती है उसे कौन सा कर्व बोलते हैं अपन? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड सी एडी कर्व स्टार्ट टू 150। सपोज कीजिए यहाँ पे कितना 100 है, यहाँ पे 200, 300, 400। तो सप्लाई जो एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से मिनिमम पॉइंट क्या है उसका 150, और एएस कर्व का मिनिमम पॉइंट कौन सा है यहाँ पे 0। तो 0 पॉइंट से अपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट किया है। ओके, सेकंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट टू 150 पॉइंट। तो 150 कहाँ होगा? यहाँ से क्या होगा? देखो इसकी इंक्रीजिंग रेट है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है, बट इसकी क्या है? स्लो है। 150, 175, 200, 250, 300, 350, यहाँ पे 400 है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा कर्व अपने पास? एग्रीगेट डिमांड कर्व। ओके, अब सिंपल सा फैक्ट है यहाँ पे इस डायग्राम से आप इसके तीनों अप्रोच को, इसके कंक्लूजन निकाल सकते हो। जो कंक्लूजन होगा वही डायग्राम का आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट होगा? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो ये कौन सा अप्रोच हो गया? फर्स्ट अप्रोच हो गया व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द इकोनॉमी इन शॉर्ट रन आउटपुट। ओके, इससे पहले देखो, जस्ट इससे पहले, इस पॉइंट से पहले यहाँ पे कौन सा कर्व ऊपर है ज्यादा? कौन सा कर्व है यहाँ पे? हाईएस्ट पे। एग्रीगेट डिमांड क्या है यहाँ पे? एडी कर्व इस क्या है? ग्रेटर देन एएस कर्व है, यानी एडी है वो क्या है? ज्यादा है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये जो इसका जो एरिया है, ट्राइंगल एरिया है, ये जो एरिया है कि किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ये कर रहा है एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? और सेकंड जो इसका पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपको यहाँ है, यानी इसी पोजीशन में क्या होता है इकोनॉमी में? एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज क्या होती है? हाई होती है एग्रीगेट सप्लाई से। यानी डिमांड, लोगों की डिमांड ज्यादा है और उसका जो आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, वो क्या है? कम है। सेकंड पॉइंट एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी जितनी लोगों की डिमांड है इकोनॉमी में उतनी मार्केट में उसकी सप्लाई हो रही है। ओके, तो सेकंड अप्रोच ये। और जो थर्ड इसका जो अप्रोच है वो क्या है? एएस ग्रेटर देन एडी। तो ये इसके बाद में जो 20 है भाई यहाँ पे, ये जो सैप है इसका जो आगे का जो एरिया है वो किसको डिनोट करता है? एएस ग्रेटर देन एडी। तो ये थर्ड सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन और ये फर्स्ट सिचुएशन। तो इस अप्रोच के 3 कंक्लूजन होते हैं। तो आप इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और इसको आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे शेड्यूल में देखो आप, एएस इज 100, देन एडी इज C plus I equals to 100, Y 100, C 100, investment is constant, then is 100 equals to 100 equals to 200 यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर क्या है? इंक्लूड है। ओके, तो आप इसमें इसका एग्रीगेट डिमांड जो शेड्यूल होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिनोट कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे देखो सेम लेवल अपन फाइंड करते हैं। तो देखो इनकम एस 300, इनकम इज 300, तो 300 इनकम है। वहां पे देखो एग्रीगेट डिमांड करो कितना है? 300। देखो यहाँ पे, अब देखो ये पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ 100, 200 और 300। तो 300 यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे 300 क्या है? आपकी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई यहाँ पे 300 है और यहाँ पे इनकम वो भी कितनी है? 300 है। तो ये कौन सा पॉइंट है इकोनॉमी का? इक्यू पॉइंट है। बिफोर इक्यू पॉइंट इन द इकोनॉमी AD greater than AS, and after equal point in third situation aggregate supply greater than aggregate demand। ये तीनों सिचुएशन आपके सामने टेबल शेड्यूल में भी हैं और आपके इसको डायग्राम में भी डिनोट कर सकते हो। ओके, क्लियर? वंस अगेन रिपीट, aggregate demand equals to aggregate supply curve in this schedule according to diagram। ओके,
फर्स्ट एग्रीगेट सप्लाई करो स्टार्ट टू 0 पॉइंट, इकोनॉमी में सप्लाई करो होता है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। और एग्रीगेट डिमांड करो कहाँ से स्टार्ट होगा, मोर देन 0 पॉइंट अकॉर्डिंग टू टेबल 150 पॉइंट। तो 150 पॉइंट से एग्रीगेट सप्लाई करो स्टार्ट होता है और अपवर्ड होता है। अब दोनों डायग्राम जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इकोनॉमी का कौन सा पॉइंट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट जिसको अपन बोल सकते हैं, और एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? बिफोर दिस पॉइंट aggregate demand greater than aggregate supply and after this point aggregate supply greater than aggregate demand. ओके यदि डिमांड ज्यादा इकोनॉमी में सप्लाई कम हो रही है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। उसके बाद में सेकंड सिचुएशन होती है वो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इकोनॉमी में बराबर होते हैं। और थर्ड सिचुएशन इकोनॉमी में क्रिएट होती है, वहाँ पे क्या होता है कि सप्लाई होती है इकोनॉमी में ज़्यादा होती है और उस की मार्केट में डिमांड वो क्या होती है, कम होती है। क्लियर? अगेन second approach S and I. S for saving, S for savings और सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन दोनों अप्रोच की हेल्प से अपन क्या फाइंड करते हैं, सेकंड अप्रोच का फाइंड करते हैं। तो S एंड I है वो अपन किससे निकालते हैं, वो अपन AD और AS से ही फाइंड करते हैं। ये मैंने मेरी जो सेकंड थर्ड वीडियो था उसमें भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था कि जो AD और AS का इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है वहां से ही अपन क्रिएट करते हैं I और S। AD equals to AS, okay, AD equals to, you also know, C plus I and AS equals to C plus S। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं अपन को, C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस, तो C टू C कैंसिल, I इक्वल्स टू S। तो सेकंड अप्रोच अपना वो यहीं से क्रिएट होता है कि AD और AS का सेकंड जो पॉइंट होता है इकोनॉमी में वो किससे बनता है, I और S से बनता है। ओके अगेन नेक्स्ट सेकंड अप्रोच, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स इन द इकोनॉमी। फर्स्ट है इनकम Y, Y 0, 50, 100, 200, 300, 400. Second, the consumption depend on Y, 50, 75, 100, 150, 200, 250. Third column, investment is constant in the same output level of income, 100 each point 100. And next saving equals to होता है Y minus C, Y कितना 0 और C कितना 50, तो minus 50, minus 25, 0, 50, 100, 150. Okay, you also know I equals to S in second approach in the economy according to this schedule. We draw a diagram, X and Y 0, X on से of income and Y से on I equals to S कर दो। तो अपने यहाँ पे I equals to S लिया है, यहाँ पे AD equals to AS नहीं लिया OYX पे। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि अपन सेकंड अप्रोच यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, I equals to S। तो जो अपन डायग्राम डिनोट करते हैं कर्व में उसी को अपन किस पे शो करते हैं, ऑलवेज OY पे शो करते हैं। क्लियर? फर्स्ट है इनकम 100, 200, 300, 400, 500। ओके इन्वेस्टमेंट कर्व इज डिपेंड ऑन Y, नो, इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी भी Y पे डिपेंड नहीं करता है। तो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये जो Y है वो तो इंक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखना है इसको। मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जब अपन जो टेबल में जो पढ़ते हैं वो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो आउटपुट के एवरी लेवल पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट कर्व क्या होता है, कांस्टेंट होगा, तो 100, 200, 300, 400। तो इन्वेस्टमेंट कर्व जहाँ पे कांस्टेंट है वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वही लाइन कौन सी होगी, इन्वेस्टमेंट कर्व होगी, आई कर्व। ओके सेकंड कौन सा कर्व अपने पास, सेविंग कर्व है। सेविंग कर्व स्टार्ट टू -50, बट यहाँ पे अपन ने कौन सा लिया है, 0 पॉइंट लिया है, तो 0 क्या है ना, तो प्लस में 0। तो -50 के लिए क्या करेंगे, इस जो लाइन होती है OY एक्स की उसको नीचे अपन इंक्रीज करेंगे। तो जब उसको नीचे इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि -100 आएगा।
और अपना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेविंग्स करो -50 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये -50 है यहाँ पे -50। और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, व्हेन इनकम इज 100 देन सेविंग इज इक्वल्स टू 0। तो ये जहाँ पे इनकम यहाँ पे यदि 100 है तो सेविंग्स यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो सेविंग फंक्शन है ये कहाँ से इसको इंटरसेक्ट करेगा, ओ वाई एक्स को 100 पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद में देखो सेविंग्स होती है वो स्लोली इंक्रीज होती है और इनकम वो स्पीडली इंक्रीज हो रहा है। इसको यदि इसको इंक्रीजिंग लेवल से इंक्रीज करते हैं तो अपने पास एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो जो लाइन हमें मिलती है वो कौन सी लाइन होगी, वो सेविंग कर्व होगा। ओके, अब जो सेविंग कर्व है, सेविंग कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, इन्वेस्टमेंट कर्व को, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो कौन सा इक्वल पॉइंट होगा, वो एस इक्वल्स टू आई पॉइंट होता है। अर्थात सेविंग फंक्शन सेविंग कर्व इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कर्व इन द इकोनॉमी। ओके, क्लियर। बिफोर दिस पॉइंट, I greater than S, I greater than S, and after this equilibrium point saving greater than I, saving greater than I, यानी सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि जहाँ जैसे फर्स्ट डायग्राम में आपने AD इक्वल्स टू AS पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स है। ओके, जहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, इक्यू पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द इकोनॉमी। और एस इक्वल्स टू आई, बिफोर दिस पॉइंट इन्वेस्टमेंट हाई एंड सेविंग्स लो, एंड आफ्टर दिस पॉइंट सेविंग्स हाई एंड इनकम इन्वेस्टमेंट लो। क्लियर। ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपकी इकोनॉमी में, उनको आप ठीक से समझना है। और आपके एग्जाम्स में इन दोनों में से क्वेश्चन रिपीट होता रहता है मोस्टली एग्जाम्स में आपकी। अगेन वी नो s equals to function of y, I teach in last class s equals to function of y. Okay, y for income, income is independent variable and saving depend on y. Y is increase then effect on saving, saving will be automatically increase। यानी जैसे जैसे इनकम इकोनॉमी में इंक्रीज होती है वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या होती है, इकोनॉमी में इंक्रीज होती है। तो कंजप्शन और सेविंग्स दोनों किस पर डिपेंड करते हैं इकोनॉमी में, इनकम लेवल पर डिपेंड करती है। इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंजप्शन है और आपकी सेविंग्स है वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे आपकी फैमिली की इनकम है वो बहुत कम प्रेजेंट टाइम में है ना, और सडनली किसी भी रीजन से आपकी फैमिली की इनकम इंक्रीज होती है, ओके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो इसी पोजीशन इंक्रीज होने पर आपकी फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपका कंजप्शन का स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा। जैसे जैसे आपका कंजप्शन लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी फैमिली की सेविंग्स से ऑटोमेटिकली क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इसी पोजीशन में क्या होता है कि जो सेविंग्स और कंजप्शन है फैमिली का, इकोनॉमी का, वो ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो सेविंग फंक्शन डिपेंड ऑन वाई, ओके, इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको फैमिली का कंजप्शन भी इंक्रीज होगा और सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, तो ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एट द लो लेवल ऑफ इनकम एस कैन बी नेगेटिव, जैसे आपने पहले देखो लास्ट टेबल में देखा था कि इनकम कम होगी तो आपकी सेविंग्स है फैमिली की वो भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इनकम इज 0 देन सेविंग इज -50, income increase 50 then saving -25, income 100 then saving 0, income increase savings increase। तो आप इसको इस अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि आपकी इनकम है उस पर मोस्टली आप कंजप्शन और सेविंग बोथ आर डिपेंड ऑन योर इनकम। ओके, C may be greater than Y and S because negative the extent C greater than Y. We are consider a straight line as function called is linear function. I function airs cigarettes. Investment function we are consider only autonomous consumption. Autonomous investment I. इन्वेस्टमेंट कर्व होता है इकोनॉमी के कैसा होता है, ऑलवेज ऑटोनोमस होगा,
और सेविंग कर्व होगा ऑलवेज इकोनॉमी में कैसा होगा, स्टार्ट टू माइनस पॉइंट टू अपवर्ड। अपवर्ड क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या होती हैं आपकी इंक्रीज होंगी, इसलिए सेविंग फंक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन का पॉजिटिव होगा, और जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, एक्सिस टू हॉरिजॉन्टल। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। अभी मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी भी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी आपके सामने एक्सप्लेन किया था। जैसे सपोज अपनी स्कूल है, स्कूल में जो बिल्डिंग्स हैं, बिजली का इलेक्ट्रिक बिल है, फर्नीचर्स वगैरह जिसका उसका एक्सपेंडिचर होना था वो तो हो चुका है पहले ही, उसका प्रेजेंट टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा जो एक्सपेंडिचर जिसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। सपोज करो स्कूल की प्रेजेंट टाइम इनकम 0 रुपीज है, तो 0 रुपीज के अकॉर्डिंग खर्चा जो एक्सपेंडिचर था स्कूल ने वो कर दिया। ओके, तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट था, स्कूल का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था, उसकी प्रेजेंट टाइम की इनकम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अकॉर्डिंगली इट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन शूटिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो ये कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो आपको सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन दोनों आपके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग, और आप इसमें बुक्स की हेल्प लेके इनके नोट्स बनाइएगा। और एड चैप्टर के नोट्स हैं वो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और बुक्स हैं और नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। ओके, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इस नोट्स में या यूट्यूब चैनल से, तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, आपकी ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। थैंक यू।